محمد تقی علیہ السلام من رأى قبر محمدی فی القم وجب له الجنہ۔ امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی ہماری پھوپھی یعنی معصومہ قم کی زیارت کرے گا تو اس کے لیے انعام جو ہے وہ جنت ہے۔ تو اللہ نے مطلب بہت سی مناسبتیں ہیں، اس بات ہے شاہ عبدالعزیز کی وفات اور دیگر جو ہے جنگ ماہ شوال میں، اور یہ مہینہ بھی اختتام پہ ہے، اور جو مناسبتیں ہیں ایک تو جناب ابو طالب علیہ السلام اور معصومہ قم پہلی ذکادہ کو معصومہ قم کی ولادت و سعادت کی تاریخ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جناب ابو طالب نے جو احسان کیا اور دنیا جو ہے وہ شمار نہیں کر سکتی، اور معصومہ قم کے جو فیض ہے، جو برکات ہے، جو اس سرزمین پہ قم کی سرزمین پہ جو روحانیت اور معنویت ہے، اور جیسا کہ خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے ذکر کیا، تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہلے ہی ذکر کر دیا تھا کہ شہر قم جو ہے وہ جو ہے معنویت کے اعتبار سے، اور جیسا کہ فرمایا کہ ہر ایک کا حرم ہے، اور ہم اہل بیت کا حرم جو ہے وہ قم ہے، ہر ایک کا حرم، اور وہاں کی فضیلت کے سلسلے سے بھی ذکر کر دیا کہ اس سرزمین کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے، اور ایثار معصومہ قم کی فداکاری، بھائی سے محبت، یہ تمام چیزیں ہیں کہ خود جو ہے بھائی کے لیے معصومہ قم جو ہے وہ مدینے سے ہجرت کرتی ہیں، اور پھر جو ہے ایسے موقع اور مرحلے پہ شہزادی کی وفات ہوتی ہے۔ تو اسلام میں جو ہے خواتین کا مرتبہ ہے وہ الگ مسئلہ ہے کہ دور جو جاہلیت کا دور تھا اس میں آپ دیکھیں کہ لوگ کیا سلوک کرتے تھے عورتوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، کہ زندہ دفن کر دیتے تھے، اور دفن کرنے کے بعد جو ہے فخر محسوس کرتے تھے، لیکن پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ یہ عورتیں جو ہے، یہ بیٹیاں جو ہے، یہ بیٹیاں لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ اور دیکھیں کہ جناب مریم کو اللہ نے بیٹا دیا جناب عیسیٰ، لیکن جو ہے یہ بغیر باپ کے، یعنی پروردگار نے یہ بتا دیا کہ انسان جو ہے وہ بغیر باپ کے تو پیدا ہو سکتا ہے لیکن بغیر ماں کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عورت جو ہے یہ نسل انسانیت کی بقا ہے، جو عورت کی خواتین، تو بہرحال بے شمار جو ہے فضائل ہے بیٹیوں کے سلسلے سے کہ رحمت ہے، اور جیسا کہ خود پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹیاں ہوں تو فرشتے جو ہے اس گھر کو دیکھا کرتے، معصوم فرشتے ملائکہ جو ہے وہ مشتاق ہوتے ہیں، اس گھر کو دیکھا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث ہے، رسول اسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹیاں ہوں، یعنی بیٹیوں کی پرورش کر رہا ہو، بیٹیاں ہو پرورش کر رہا ہو، تو اسے جو ہے سال بھر کی عبادت کا ثواب ملے گا،
शब और रोज जोड़कर साल भर की इबादत का उसे सवाब मिलेगा। और फरमाया कि अगर कोई शख्स जो है 2 बेटियों की परवरिश कर रहा है तो पैगंबर अकरम ने फरमाया कि वो जन्नत अरे साथ होगा। अब जाहिर सी बात है जन्नत के सिलसिले से, सूद के सिलसिले से नहीं, अर्ज के सिलसिले से जो जिक्र हुआ है जमीन और आसमान उस तरीके से करीब होगा कि जिस तरीके से 2 उंगलियां करीब हुआ करती है। तो बहरहाल इस सिलसिले से बेशुमार जो है हदीस मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया है। तो मासूम कौम की जो आजमत है, जो फजीलत है, और सिर्फ जो है एक वाक़े की तरफ इशारा कर दे कि जब 7वें इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम बैतुल शरफ में मौजूद नहीं थे, जनाब मूसा कासिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा का नाम नजमा खातून, और फिर जो है 8वें इमाम की औलादत हुई, और फिर जो है एक मुद्दत फिर 25 साल के बाद तो बाहर आना कि जो उनकी अजमत है। तो जब इमाम मौजूद नहीं थे और खुद जो है इमाम के चाहने वाले सिया जो है इमाम की खिदमत में आए, और इसलिए कि ताकि कुछ मसाइल दरियाफ्त करें, इमाम से कुछ मसला मालूम करें। जब इमाम की खिदमत में आए तो मालूम ये हुआ कि इमाम उस वक्त मौजूद नहीं है, खत में लिख कर लाए थे, कुछ मसला दरियाफ्त करना था, इमाम मौजूद नहीं थे, इमाम मौजूद नहीं थे। अब लोगों ने दरियाफ्त किया तो बताया कुछ मसाइल के सिलसिले से आए हैं। लोगों ने जो है मासूम कौम से कहा, जब मासूम कौम से कहा, मासूम कौम ने जो है उस नामे को पढ़ा और पढ़ने के बाद जो है उसका जवाब तहरीर कर दिया, लिख कर दे दिया। अब जो है ये जाने लगे, और जब जाने लगे तो रास्ते में इमाम से मुलाकात हुई, 7वें इमाम से। तो अब लोगों ने दरियाफ्त किया, मौला हम आपकी खिदमत में गए थे, आप मौजूद नहीं थे। इमाम ने पूछा क्या मसला है? अब लोगों ने कहा कि ये मसाइल थे मौला, और ये तहरीर है, यानी आपकी साहबजादी ने वो जो है लिख कर दे दिया। इमाम ने देखा, और देखने के बाद, पढ़ने के बाद इमाम ने कहा फिदा का अबूहा, यानी तुम्हारा बाप जो है तुम पे कुर्बान हो जाए, है ना, फिदा हो जाए। यहाँ जो इमाम ने फरमाया तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो है निस्बती ताल्लुकात की वजह से, है ना, यानी इल्म और मार्फत और बसीरत इस मंजिल पे था, है ना, कि इमाम ने फरमाया। तब आप अंदाजा लगाएं कि मासूम कौम की क्या अजमत है। अरे जब उस सरजमीन की अजमत है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नजब जो मरकज इल्म होगा, लेकिन फिर जो है मरकज इल्म जो है वो शहर कुम होगा, ना, फरमाया ना कि जो कूफा होगा, नजब कूफा, जो कूफा होगा, और फिर जो है इल्म इस तरीके से, यानी मरकजियत खत्म हो जाएगा जिस तरीके से सांप जो है दिल से निकल जाता है। तो अब आप देखें कि आज भी जो है शहर कुम इल्म का मरकज बना हुआ है। आज जो है वहाँ पे जो महाराजे है, जो उलमा है, आज भी है ना वहाँ पे मजबूती के साथ है। आप देख ले कि पूरी दुनिया से जो है लोग वहाँ पे जाते हैं, जो इल्म के तशना है, प्यासे हैं, इल्म हासिल करने के लिए शहर कौम जाते हैं, और जाने के बाद इल्म हासिल करते हैं, और इल्म हासिल करने के बाद आप देखें कि फिर पूरी दुनिया में जो है वो इल्म को फैलाते हैं। आज भी आप देखें कि वो अफराद है कि जो मसलन जो है जेली हदीस वगैरह कर लेते हैं, या यूं कह लीजिए इजरायली हदीस जो है कर लेते हैं, तो सब जो है ये छाट पटक, छाटना काटना जो है आजकल जो है वही मरकज से होता है ना। लेकिन आवाम को क्या मालूम है, लोग क्या जाने कि मसलन जो है कौन हदीस कैसी है, या इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है या नहीं, है ना। आजकल तो हवाला देना भी आसान है, फौरन हवाला दे देते हैं। मालूम हुआ कि लोग वहां तक पहुंचेंगे, छानबीन करेंगे, ऐसी किताब का नाम नहीं, किताब ही नहीं मिलेगी आपको। तो मालूम ये हुआ कि ये सब जो है आजकल भी कौन दुरुस्त है हदीस नहीं है, कौन सी हदीस गढ़ी गई है, ये सब जो है शहर कुम से हो रहा। तो शहर कुम का ये मर्तबा है कि जब एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम खिदमत में जब हाजिर हुआ, और हाजिर होने के बाद उसने कहा कि मौला हम जो है शहर रे से आए हैं,
امام نے کہا کتنے خوش نصیب ہیں ہمارے قمی بھائی ہیں. پھر اس نے کہا مولا ہم جو ہے شہر رے سے آئے، یعنی شہر کا نام لے رہا لیکن مولا کہہ رہے ہیں قم کہہ رہے ہیں، کتنا خوش نصیب ہیں ہمارے قمی بھائی. پھر تیسری مرتبہ کہا کہ ہم جو ہے شہر رے سے آئے ہیں. تو امام نے کہا کہ قمی جو ہے یعنی جو قم کے جو باشندہ قمی بھائی ہیں وہ کتنے جو ہے خوش نصیب ہیں. تب جو ہے کہا کہ مولا ہم جو ہے شہر رے سے آئے، اس کے بارے میں تب امام نے فرمایا کہ یہ جنت کے دروازے ہوں گے وہ جو ہے شہر قم کی طرف کھلے گا، اور فرمایا کہ ہم اہل بیت کا مرکز جو ہے شہر قم ہے. جب سر زمین کی یہ منزلت ہے، جب مکان کا یہ شرف ہے تو پھر مکین کا کیا شرف ہوگا. تو بہرحال جو مناسبتیں ہیں اس میں سے ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ارادت شہادت کی تاریخ ہے، اور معصومہ قم جو لقب جو ہے امام نے دیا تھا. بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اہل بیت معصومہ قم کے صدقے میں علم اور عقل سلیم عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت ورحمت وغضبت وسكن يدنا برحمت. سبحان من لا يزداد ولا معصي عباد الله كراما وجود لا كثرة الذنوب إلا عفوا وصفا. نشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وسلم. سبحان أفضل عباد مذنبين بعلمه. ونشهد أن محمد حبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين وحسد رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكذب المقام الأحد. قرآن مجید میں پروردگار نے انبیاء کا ذکر کیا ہے. کچھ ذکر جو ہے پروردگار نے انبیاء کا تفصیل کے ساتھ کیا ہے، اور کچھ ذکر جو ہے انبیاء علیہ السلام کا قرآن میں جو ہے تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، اختصار کے ساتھ ہے. تو کچھ سورہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں قرآن مجید میں انبیاء کے نام پہ بھی سورہ ہے. تو ایک سورہ جو انبیاء کے نام پہ ہے وہ سورہ ہود ہے. سورہ ہود جو ہے یہ انبیاء کے نام پہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جناب ہود علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت سے سرفرازہ تبلیغ کے لیے بھیجا، تو جب نبوت پروردگار نے دیا تو جناب ہود علیہ السلام 16 سال کے تھے. لیکن حیرت کی بات نہیں ہے، اللہ نے جناب عیسیٰ کو جو ہے نبوت فکر بھیجا، نبی بنایا. جناب عیسیٰ کو بچپنے میں نبی بنایا. تو جناب ہود علیہ السلام کو 16 سال میں پروردگار نے نبوت سے سرفرازہ، اور جناب ہود علیہ السلام یہ جناب نوح علیہ السلام کی 8ویں پشت ہیں، نسل سے 8ویں سے پشت ہیں. اور آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں جو ہے ذکر ملے گا جو قوم گزر چکی ہے جس نے سرکشی کی ہے، اکثر جو ہے ذکر ملے گا. اب آپ ظاہر سی بات ہے کہ جناب ہود علیہ السلام جو تبلیغ کے لیے آئے، اور جو سورہ ہے 123 آیات ہیں اس میں، اس سورہ میں سورہ ہود. تو بہرحال
जनाब हूद अलैहिस्सलाम तबलीग के लिए आए, कौम आद तबलीग कर रहे थे, लेकिन जो है कोई असर नहीं हुआ। और ये कौम जो है ना, इनकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी, अब बहुत ताकतवर थे और दौलत से भी सरफराज थे, बेशुमार दौलत सरवत इल्म से सरफराज। अब बहुत जो है ये मोटे तगड़े डोल मोल है ना, बहुत लंबे चौड़े ताकतवर, तमाम जो है नेमतें इनके पास है। और जनाब हूद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ईमान लाओ, यानी जनाब हूद अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि ईमान लाओ, यानी तबलीग कर रहे हैं, लेकिन इतनी नेमतें इनके पास थी, न सुधरना था न सुधरे, ये जो है ईमान नहीं लाए। यानी जनाब हूद अलैहिस्सलाम मुतवज्जे कर रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं, अब भी समझ जाओ, अब भी संभल जाओ। लेकिन जो है ये जो है नेमतों की फरावानी जिसकी वजह से ये संभले नहीं, तो अब क्या हुआ, परवरदिगार ने उनके ऊपर अज़ाब नाज़िल किया। पहला अज़ाब ये हुआ कि कहत पड़ गया, बारिश रुक गई है, बारिश रुक गई। अब जाहिर सी बात है कि ये ईमान नहीं ला रहे हैं, अब जो है इनके ऊपर अज़ाब नाज़िल शुरू हुआ। तो क्या देखा, बादल। अच्छा, बहुत जमाना हो गया तो बादल देखा नहीं था। अब ये सोच रहे थे कि अब बारिश होगी, बादल जो देखा तो ये सोचने लगे कि बारिश होगी, और आखिरकार क्या हुआ कि बारिश नहीं हुई, है ना, आग बरसने लगे, आग बरसने लगे। और इनके जो अज़ाब नाज़िल हुआ तो एक हफ्ते तक, यानी एक बुध से लेकर दूसरे बुध तक, चार शंबे तक जो है इन पे अज़ाब नाज़िल हुआ। अब ये इससे अंदाजा लगाएं कि इतनी जो है जोर से आदियत चल रही थी कि ऊंट भी उड़ जा रहे थे, यहां तक कि एक औरत जो है सुराख में चली गई, लेकिन हवा ने उसे खींच लिया, खींचने के बाद जो उठाकर पटक दिया, इतनी शदीद जो है हवा। लेकिन जो है ये मतलब 90 नहीं हुए, तो एक हफ्ता तक, यानी एक बुध से दूसरे बुध तक जो है उन पे अज़ाब नाज़िल हुआ। बहरहाल शायद हो सकता है इसी वजह से बुध को जो है नहुसत करार दिया जाता है, इसलिए कि एक बुध से दूसरे बुध तक जो है उनके अज़ाब नाज़िल हुआ। बहरहाल वो एक अलग मौजू है, या मसलन जो ये भी है कि बुधी के दिन जो है काबिल ने जनाब हाबिल को कत्ल किया, शायद इसी वजह से मनहूस करा देते हो। बहरहाल एक बुध से लेकर दूसरे बुध तक जो है ना उनपे अज़ाब नाज़िल हुआ, और न उन्हें संभलना था न वो संभले। इसलिए उन्हें जो है दौलत का गुरूर था, ताकत का गुरूर था, तमाम नेमतें थी उसका जो है गुरूर था। देखिए एक बात और याद रखें कि तबलीग के लिए नबी का जाहिर होना जरूरी नहीं है। देखिए 1,24,000 अंबिया थे, तो ये जो है जाहिर बजाहिर अंबिया थे, लेकिन हदीस है पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी दो है, एक जो है जाहिरी नबी होता है, एक जो है बातिनी नबी, है ना। तो बातिनी नबी जो है वो क्या है, जमीर है, बातिनी नबी जमीर है। जैसे जो है मसलन जो है आप नमाज जुमा में आते हैं, बावजू होकर गुस्ल करके मुनासिब लिबास पहन के, ये तमाम चीजें हैं, तो ये जो है यही बातनी है कि पैगंबर अकरम और अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीस की रोशनी में हम उस पर अमल कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये बातनी यानी जो अंदर का ज़मीर है, ये बातनी नबी है, और जाहिरी नबी तो 1,24,000 है। तो बहरहाल पैगंबर तबलीग कर रहे थे, जनाबे हो तबलीग कर रहे थे, आखिरकार जो है वो ईमान नहीं लाए और उनके ऊपर जो है अज़ाब नाज़िल हुआ। अब इनके बाद जो है जनाबे सालेह नबी आए, वो भी कौम जो है बहुत दौलतमंद थी। अच्छा, जनाबे हूद की भी कब्र कहाँ है, नजफ़ अशरफ में? जनाबे सालेह की कब्र कहाँ है?
नजफ अशरफ में जो भी ज़ियारत करने गए होंगे देखा होगा ना, मालूम है इनकी भी खबर है। तो बहरहाल जनाब हूद अलैहिस्सलाम के बाद जो है जनाब सालेह नबी आए और वो भी तबलीग करते रहे कि ईमान लाओ, लेकिन उनकी कौम को भी बहुत गुरूर था, वो ईमान नहीं लाए। और क्या करते थे, ये जो है साल में एक बार पहाड़ी पे जाते थे और जाने के बाद कुर्बानी करते थे, और कुर्बानी करने के बाद जो है फिर पूजा करते थे, परस्तिश करते थे। जनाब सालेह अल्लाह के नबी ने रोका, कहा कि ये ना करो। कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा शर्त ये है कि आप जो है हुक्म दीजिए या दुआ कीजिए कि इस पहाड़ी से एक ऊँटनी और बच्चे के साथ जो है वो बरामद हो, तो फिर हम जो है ईमान लाएंगे। जनाब सालेह अल्लाह के नबी ने परवरदिगार की बारगाह में दुआ की, अब जो है एक ऊँटनी और उसके साथ जो है बच्चा भी आया, और वक्त वगैरह मुअय्यन कर दिया। जनाब सालेह ने वक्त मुअय्यन कर दिया कि ये ऊँटनी जो है नहर में पानी पीने जाएगी, न कोई रोके न कोई टोके, पैर लगा दिया। और ये ऊँटनी जो है देखिए इतना दूध होता था ना कि पूरी कौम यानी हर जो है फर्द के घर जो है ये दूध पहुंच जाता था, पूरी कौम के घर तक जो है दूध पहुंच जाता था, इतना जो है दूध होता था ऊँटनी का। तो बहरहाल तो इन्होंने ये कह दिया कि न कोई रोके न कोई टोके, लेकिन एक शख्स था, उसका नाम था केदार, है ना, केदार नाम था। उसने क्या किया, उसने जो है वो ऊँटनी के चांद को काट दिया। अब ऊँटनी जो है खत्म हो गई। अब जो है ये बच्चा, ऊँटनी का बच्चा, आप देखिएगा ना कुरान में भी तफसील में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। वो जो कौम आद जो बहुत सरकशी किया, जिन्हें गुरूर था, तो सब उसके अंजाम को भी परवरदिगार ने कुरान में नकल किया है। तो बहरहाल अब ये जो बच्चा था एक बुलंदी से गया, और जाने के बाद उस ऊँटनी के बच्चे ने आसमान की तरफ रुख करके परवरदिगार की बारगाह में कहा, यानी अपनी जो है माँ की महरूमियत, माँ के बिछड़ने का शिकवा किया। अब जब माँ के बिछड़ने का शिकवा किया तो अब उनके ऊपर जो है अजाब नाजिल हुआ। कैसा अजाब? यानी आसमान से एक ऐसी आवाज, देखिए अब भी जब बारिश वारिश होती है तो बिजली जो है कड़कती है ना, बिजली कड़कती है, तो इस तरीके से एक आवाज पैदा हुई, यहाँ तक कि लोगों के कानों के पर्दे फट गए, ऐसी जो है आवाज आई। और बहरहाल उनके ऊपर जो है अज़ाब नाज़िल हुआ, क्यों जनाबे सालेह अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे, लेकिन जो है वो ईमान नहीं लाए। तो देखिए इस वाक़े से ये मालूम होता है, हालांकि मुतनब्बे भी कर दिया था कि देखो अभी भी वक्त है ना, तौबा कर लोगे तो आज़ाब जो है टल जाएगा, लेकिन शदीद आज़ाब में मुब्तला हो गए। तो परवरदिगार जो है कभी कभी दौलत देकर ये चाहता है कि इंसान जो है वो दीदार हो जाए, और परवरदिगार ये बताना चाहता है कि देखो अगर जो है तुम हमारी बारगाह में तौबा करोगे तो परवरदिगार जो है अपने आज़ाब को टाल देगा। तो कभी कभी नेमत देकर, दौलत देकर जो है अल्लाह ये चाहता है कि बंदा जो है दीदार। आप देखें जनाब खदीजा के पास कितनी दौलत थी, और नौ मुसलमान सब नए नए मुसलमान, इतनी दौलत थी कि कनीज जो है वो बाल में जो है सच्चे मोतियां जो है पिरोती थी, कनीज, इतनी दौलत थी। रवायत में मिलता है खलीफा अव्वल से इतनी दौलत थी जनाबे खदीजा की, जो दिरहम और दीनार सिक्के और सब जो है बीच में रखा गया, इधर खलीफा अव्वल थे। अब वो कहते हैं कि उधर रसूल इस्लाम थे, कि इतनी दौलत रख दी गई कि अब ये नहीं मालूम हो रहा था कि रसूल इस्लाम खड़े हैं या बैठे, दिखाई नहीं दे रहे। तो बहरहाल क्या बात देखे कि इतनी दौलत, और जनाब खदीजा ने जो है जो सर्फ किया, और जो नौ मुस्लिम थे, लेकिन जो है क्या हुआ कि आप देखें कि जनाब खदीजा की औलाद को
लोगों ने जो है शहीद किया। आप देखें कि करबला के मैदान में या दिगर जो है मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ जो जुल्म किया, और जाहिर सी बात है कि अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम जो है उनकी रवायत और हदीस और बयान और इक़दाम की जुल्म के खिलाफ, लेकिन सबसे ज्यादा जो है जुल्म उन्हीं पे हुआ। और आज भी आप देख ले हैं कि जनाब खतीजा की औलाद आगे खामनई रिज़वानुल्लाह जिस जो है तरीके से जालिमों ने शहीद किया, तो बहरहाल आप देखें कि शहादत के बाद जो इनकलाब पैदा हुआ इस दुनिया में, और जाहिर सी बात है कि देखिए कुछ मीडिया जो है ना, खबरी मीडिया, सोशल मीडिया, तो अब इससे ये ना सोचिएगा कि इससे मालूमात हासिल करें, नहीं, उससे जो है मालूमात जो है हासिल नहीं हो सकता, इसलिए कि सब कैदी है। अक्सर जो है मीडिया वाले सब कैदी हैं, ये जो है वही बोलते हैं जो उनके आका चाहते हैं, जो आका उनके बुलवाना चाहते हैं वही बोलते हैं। लिहाजा ये ना सोचिएगा कि इसके जरिए जो है हमें मालूमात होगा। तो बहरहाल ये आप देखें कि क्या एक गला पैदा हुआ, जैसा कि सब जो है आपके नजरों के सामने है कि जो तमाम चीजें जो है तबाह कर दिया था, और जो है हॉस्पिटल हो या दीगर हो या रेलवे स्टेशन वगैरह तमाम चीजें हो या ब्रिज हो, तमाम चीजें आप देखें कि आपके सामने है कि 40 घंटे में या एक हफ्ता मान लीजिए 40 घंटे में जो है उसे जो है बहाल कर दिया है ना, नेटवर्क वगैरह तमाम चीजें, और पूरी दुनिया जो है वो हैरत में पड़ी हुई है। और बहरहाल मुज़ाकरात भी जो हुआ इस्लामाबाद में, दीगर चीजें है ना, आप सब जो है ये बता दिया कि देखो जो हक होता है वो कभी डरता नहीं है, कभी जो है घबराता नहीं है। और एक इनकलाब तो आप यही देखें कि शहादत के बाद जो एक इनकलाब ये आया कि हर मजहब के किसी बगैर तफरीक हर जो है मजहब के या मसलन जो है बच्चों के जबान पे, या आप देख लें सोशल मीडिया पे बेशुमार जो एक नारा गूंज रहा है 2026 में, है ना, हर बच्चे की जबान पे हर मजहब फिरके में एक नारा जो गूंज रहा है वो क्या है? बाप बेटे दोनों दलील है ना, ये 2026 का नारा है। और मुसलमानों को जो है 2026 में मालूम हुआ कि बाप बेटे जो है ये दोनों दलील है, लेकिन ये नया नारा नहीं है, ये जो है बहुत पुराना नारा है, और इसे जो है शहजादी ज़ैनब ने इजाद किया है। यजीद के दरबार में कहा, यजीद तू भी जलील है, तेरा बाप भी जलील है। ये जो है ना इनकलाब जो बर्पा किया, तो जाहिर सी बात है कि मुख्तसर ये है कि ये दुआ है कि परवरदिगार जितने भी जालिमीन हैं उन्हें मगलूब महकूम और जलील और रुसवा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफीइल मुज़निबीन नबियना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वाला इमामुल मुस्लिमीन व कादिल गौरुल मुअज्जलीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि وعلى سيد نساء العالمين وزد خاتم النبي سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها. قال الحسن مجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد
وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الغمان ما صاحب القرآن هذه أمنية الشرك والنفاق. اللهم فل بنا محمد ولا تفل بنا نحن ولا محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع ذكرا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسن الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. غریب جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج زیارت کے مساعد میں حج زیارت کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جو اولاد بربا والے سلام کے سب سے انہیں محب اولاد عنایت فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے امام جواد علیہ السلام کے نارے پاک کے خواب کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار ہم سب کو محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو اہل بیت معصومین علیہ الصلوۃ کی معرفت اور محبت اور مودت اور عشق میں اور زیادہ اضافہ فرما. پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد، منافقین کے نفاق، اشرار کے شر اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما. پروردگار جتنے بھی مسلمان ہیں خاص طور پہ جو شیعہ حیدر درار ہے ان کی جان و مال و عزت و عمر و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جمیع عنایت فرما. پروردگار جو مرحومین عالم برزخ کی عذاب قبر میں مبتلا ہیں انہیں جلد از جلد آزادی نصیب فرما. پروردگار جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما. پروردگار سے اور زیادہ استقامت اور عزت عنایت فرما. پروردگار جو ظالمین سے مغلوب مقدور ذلیل رسوا فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار وقت کے بعد امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں دعائیں فرما. امین کے اوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا